Let's leave it as in the gallery. Everyone will open up the camera or remove that guy. There are few. What is this? 12. 22770012. Who is this? Unmute yourself. Okay, your camera is now on. Keep it camera on. Ifla, you can keep your camera off. No issues. Who is this Zoom user? Why is not your proper name? You should put up the proper name, right? Okay. Admit all. There are few people in the chat room. आज मैंने इधर का सिस्टम इस्तेमाल किया तो इसलिए यस सर उनको सर भी दिल्ली में आ गए क्या क्या दिल्ली ना सर तुम चला ही नहीं था हाँ okay, let's get started. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Is voice coming clear? Because I'm on today on the computer system. Is my voice yes, loud and clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Let's share screen then. And I would like to ask a few questions to you guys first before I start. Note, maybe it's working. So we discussed yesterday the DOM. So what is the DOM? Anyone tell me? There aren't any pages, so quick note and on page. Okay. Anyone tell me about the DOM? What do you mean by the DOM? Yes. Startup, what is DOM? Come on quickly. We don't have time. Speak up. So DOM means document object model. ये इंटरफेस होता है वेब डॉक्यूमेंट्स के लिए जो प्रोग्रामर्स यूज करते हैं मैनिपुलेट करने के लिए स्ट्रक्चर स्टाइल और कंटेंट को या हर चीज को एज ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है और हमारी जावास्क्रिप्ट में हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है ये इंटरफेस होता है जिसके थ्रू हम बहुत सारी चीजों को टारगेट कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने टाइटल चेंज किया था डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल से और हम लोग आईडी का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी से हमने चेंज किया था. Absolutely. I think only one student is telling. Is it Ifla? Yes, sir. Yeah. मुझे लगता है आईटी में सिर्फ एक ही स्टूडेंट है वो है इफला बाकी तो मुझे दिख ही नहीं रहा कोई सो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में हमने क्या किया काम कि जो आपका HTML है उसको हमने हर एक उस एलिमेंट को जो भी इसके पास एलिमेंट है उसको हमने wrap किया as an object. We wrapped that as an object and created a tree structure, simple as it is. ठीक है ना एक ट्री जैसे फैमिली ट्री होती है आपकी मतलब ये फादर है फिर उसके बच्चे हैं फिर उसका ये उसके ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑल likewise we have here the window okay and then we have the document the basic thing is the document and under the document we got the for example HTML and HTML we got the head and we created the body and in the body then we created the rest of the things and this tree will grow on and on and on the more elements you put on and everything is treated as an object okay and this document itself is created as an object and it is given tons of methods now as a JavaScript programmer you need to access these objects so then you can manipulate them you can change their structure you can maybe change their style you can add up new elements you can do tons of things as a JavaScript programmer, but you need to have a handle to these objects in your HTML document, right? The first thing which comes in a mind is selection. So how you first select, because you want to change a particular element. Yesterday we are doing this project here. What's that? VS Code. Likewise, we are doing this. Is this visible? Yesterday we were doing on it.
and we saw we have a lot of elements here. We got a body, we got a head, we got a div, we got a h1s, we got divs, we got unordered list, we got LIs, we got a couple more divs here, then buttons, and many more things. And you want to select particular. If you want to change, manipulate something, you want to select it first. For the selection purposes, we got many things here, and I am gonna show you few things, right? Is it not moving down? I don't know. Control A. Let me get off my gloves. I put on the gloves today. Okay. इसका माउस काम ही नहीं कर रहा. I say Control A and hit delete. It's not deleting. Damn it. I don't know why it's not selecting and deleting. Okay, now we're done. Okay. Now what I am saying is, if you want to select, you have few methods to select. Okay, few ways to go for selection. One is what we did yesterday. What we did yesterday? Yes, come on, tell me. We did get element by ID. Yesterday we did get element by ID, and today we target get element by class name. So we can target using the class name, we can target using the tag, and we can do many more things, what's called as a query selector and all. We can do a lot of things. So first, let us talk about the class name. If you want to select somebody using the class name, so how I am going to do it? What was in our project as a class? Can you tell me? This is here. In my project, which was as a class, as you could see here, which is a class here, Command Shift plus plus. This is Control Shift plus plus. Not working. Control plus plus. Yeah. Control minus minus. Which element is having a class here? हाँ जी. किस element को class है आपको यहाँ पे? Open up the mic. Class name किस element के पास है आपको? So list में. Different list. We have the List. all, because when say class name, that means it can't be one thing, it can be many things. You know, when you have a class name, because class name means many people can be in the same class. Like you are in a minor class, it's not a one guy on a minor class, there are many people on a minor class. But if you have a roll numbers, it will be unique. Now I want to select in our JavaScript here, as you could see here, I have seen E equals to document.get element by ID. Now I don't want to get element by ID. I say control / to do this thing. I'm saying E equals to document dot get element, okay, by class name. And the class name I'm saying is the list. Now there is one issue in it. What is the issue? Issue is when you see it, when you go here and just go live to this thing, DOM, just go live to this thing. Where is go live? Oh, so this is not here. 1 second. Extension, live server. Live server. I need to install live server. Give me a couple of minutes because I'm using the college system today. So it will come in a moment. So when I say get element by class name, that means class name list. If I say get element by class name minor, who will be selected? All of you guys will be selected, right? It won't be just a one thing. If you say by ID, get element by ID, it will be a one particular element who was selected. So you had no confusion कि किसको करना है किसको नहीं, because एक पहला एक ही element था जिसको आपने select किया. Now यहाँ पे जो है ना आपका, जब आपने using the ये class name किया, it will be all the guys, all the जिसके पास भी list नाम है, class है, यानी कि फिलहाल हमारे पास ये चार चीजें हैं, ये चारों चीजें जो है ना वो आपको सिलेक्ट हो जाएंगी. दैट मीन्स हमारे पास जो कंसोल में आएगा एक एरे आ जाएगी, है ना, सीधी सी बात है. Now if I inspect it and I see the console,
and we are doing it on the click of what? The also class chala. We should do it on the press of a submit button, right? When I click the submit button, then the function वही था हमारे पास code देखिए. Because if we see here the script, ये function पे होगा और function कब call हो रही है? When I click the button, right? When I click the button, एक मिनट इसको मैं सेट करूंगा पहले एक सेकंड. क्लोज दिस. यहाँ पे जो बटन है ऑन क्लिक हमने कहा कि फंक्शन को कॉल करें और फंक्शन जो है वो ये वाली फंक्शन है. यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ई इज इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम लिस्ट और हमें कुछ दिखा नहीं क्योंकि हमने ई के साथ कुछ नहीं किया. वी शुड से व्हाट कंसोल डॉट लॉग ई. लेट्स पुट दिस ई इन आवर कंसोल. ठीक है ना. अब अगर मैं कंट्रोल एस सेव इट बिकॉज आई हैव टू सेव इट आल्सो. DOM I have to save it, so control S save it. Now if I go to the browser to check out what is happening, where is it? Here, and I click the submit button. Okay, now you see my जो E ने पकड़ा, E ने सारे लिस्ट पकड़े. उस लिस्ट में आप देखो एक एरे बन गई है क्योंकि 0 1 2 3 ठीक है ना और 4 चार एलिमेंट्स की एरे बन गई है क्योंकि मेरे पास चार लिस्ट एलिमेंट्स हैं. Now I want to change the Java only. Now I want to change the Java only, which is the first element. So it's not now the normal thing. It's an array now. It's now what? It's now an array here, which I have to deal with. So this E is not just a one thing. It's an array. So if it is an array, I want to change its text content. How I would do it? Anybody have an idea? Because this is now an array. E is not normal variable. It's an array now. Thank you. Yes. सर इसकी इंडेक्सिंग से. Exactly. We have to do indexing क्योंकि आपका जो यहाँ पे है ये अब array है. So that means I have to do one thing. I have to use E of 0. है ना. I could say E of 1, E of 2, E of 3, E of 4. अगर पहला एलिमेंट मुझे चाहिए then अगर आपको काम करना है अब E of 0 पे काम करना. E of 0 डॉट अगर मुझे इसका टेक्स्ट कंटेंट चेंज करना तो क्या लिखूंगा मैं? टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट. ठीक हो गया. नाउ अगर आप वापस जाएंगे कंट्रोल एस टू सेव इट क्योंकि ऑटो सेव नहीं होगा ये सिस्टम रिसेट नहीं किया हमने. अब हम वापस जाएंगे यहाँ पे. व्हेन आई क्लिक द सबमिट, व्हेन यू क्लिक द सबमिट नाउ जावा हैज चेंज्ड टू जावास्क्रिप्ट as you could see on the top, right? Java has changed it to JavaScript. The first unordered list li has changed it, right? ये आपका जावा यहाँ पे था. देखिए यहाँ पे जावा था. जब आपने सबमिट को क्लिक किया इट कॉल्ड द फंक्शन. वहां पे आपने सिलेक्ट कौन सा किया? ई डॉट जो आपका था उसमें आपने पूरी की पूरी एरे जिसको भी इन सब को जो ये लिस्ट आइटम्स है इन सबके पास लिस्ट क्लास नेम था. तो हमने ईमेल डाला वो सारी चीजें. तो जब मैंने उसको क्लिक किया ई डॉट कंसोल किया उसने बताया कि भाई वो सारी चीजें हैं ना मेरे पास उसमें वो चारों चीजें हैं. उन चारों चीजों में किस पे आप एक्ट करना चाहते हो? ई ऑफ 0 पे है ना. अगर मैं सी प्रोग्रामिंग को सीपीपी बनाना चाहता हूं तो मुझे बोलेगा कोई आप में से. हाँ जी कहाँ गया जूम? हाँ कोई बता मुझे अदर देन इफला. अगर मुझे सी प्रोग्रामिंग को चेंज करना है. सर इंडेक्स 1 पे है सीपीपी वही चेंज करना है. सी प्रोग्रामिंग किस इंडेक्स पे होगा? E of 3. एग्जैक्टली बिकॉज ई ऑफ 1 ई ऑफ 0 पे आ जाएगा आपका पहला वाला बंदा. ई ऑफ 0 पे आ जाएगा आपका पहला वाला बंदा. ई ऑफ 1 ई ऑफ 2 ई ऑफ 3 तो ई ऑफ 3 पे है. सो इफ यू हैव टू चेंज इट देन वी हैव टू चेंज व्हाट? ई ऑफ 3. अगर मैं ई ऑफ 3 पे चेंज करता हूं वहां पे जावास्क्रिप्ट लिखता हूं. सो दैट मींस कि आपका जो है अब अगर आप यहां देखोगे हैव आई सेव्ड इट फर्स्ट. आई नीड टू सेव इट फर्स्ट. कंट्रोल एस. मैक पे होगी ना आदत मुझे जैसे दिख ही नहीं रहा. तो अब सी प्रोग्राम वाला चेंज हो रहा है ना. अब मुझे आप एक बात बताइए कि मैं इनका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ इसी का. ई ऑफ इस एएलपी का मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ. कैसे करूं बताएं जल्दी. अब एएलपी कौन सा होगा? पहले बात यह है कि जो एएलपी है वो 0 1 2 पे है. ठीक है.
सो मैं कहूंगा ई ऑफ, हाँ जी 2, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, देन आई विल से स्टाइल फर्स्ट, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर BACKGROUNDCOLOR equals to, say for example, gray. ठीक हो गया? Control S, save it. Now I go to the browser, I just submit it. Now you see the ALP is getting gray and E of 3 is getting change name, text content change. अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर हमें सबको ही कलर करना है, मुझे सबका फॉन्ट या कलर चेंज करना है, ठीक है, आई वांट टू चेंज ऑल. सो अगर मैं ऑल का करूंगा तो वो कैसे करूंगा मैं? इफ आई वांट टू डू, आई डोंट वांट टू डू इंडिविजुअली दीज थिंग्स, आई वांट टू कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, आई वांट टू डू इट फॉर ऑल. हाउ विल आई डू इट? यूजिंग E dot style. जोर से बोले. सर E dot style क्लास को टारगेट करके. मतलब सबको करना है ना, मुझे सबके ऊपर काम करना है, तो कैसे करूंगा? आई विल यूज सर अ क्लास लूप. को टारगेट करेंगे ना लिस्ट. बेसिकली आई हैव टू यूज अ लूप ना. क्लास को टारगेट, क्लास तो सिलेक्ट हो गया ना ई में. जो ई है वो अरे है, उसमें चारों चीजें अब आपके पास है ना. जैसे कभी आप EF2 कर रहे हो, कभी आप EF3 कर रहे हो, है ना, तो इसको लूप चलाएंगे. इफ आई रन लूप दिस फॉर लेट I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन, कितने मेरे पास है? 4 है, या लेंथ भी कह सकते हैं. ओके, अब क्या कहूंगा मैं? E ऑफ I डॉट स्टाइल डॉट फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड कलर is equal to gray. What will happen by this? मकबूल साहब क्लास चला. मकबूल साहब कंट्रोल एट, सेव इट. Now if I give it a go, everybody is getting gray. Now you guys tell me, if I have to use not this loop like this, I have to use for in, how I will do it? Control forward slash. If I use for in, tell me. Open up the mics and speak. Okay. F in E. So I say for let X in E, because E is the array. Now then, because it's a for in loop, how I will do the same thing this guy I will do? So try it by. En az umarım municipal soil. Nereye geldi? What shall I do here? अरे आप बोल ही नहीं रहे हो, कोई मसला क्या है आपका? हाँ जी, होते गए होते भाई यार. ये नहीं, ये कहाँ गया? सर I की जगह X लिखिए. क्या करूं? हमारे सर इंडेक्स जगह पार्टिसिपेंट्स कहाँ I गए? लिखना पार्टिसिपेंट है, यहाँ से X. पढ़ाई आप गए. एक मिनट पहले मैं ये एलोंगेट करूंगा ये. हाँ जी, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बिकॉज व्हेन यू हैव फॉर इन लूप, आई थिंक X in E, हमने what will be X X डिक्लेयर having? किया First, है. what will be in X? What will be in the X? सर क्या इसके होगा? अंदर इंडेक्स एक एक कर देंगे. इंडेक्स होगा तो सेम है बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने फॉर ये किया I इज इक्वल 0, क्योंकि अब ये इंडेक्स Yes. खुद लगाएगा कहाँ से कहाँ शुरू. सो दैट मींस आई हैव टू से E ऑफ E of X. एग्जैक्टली, वेरी गुड. बिकॉज फॉर जो इन है वो आपका इंडेक्स देगा. जिस तरह आपने यहाँ I का वैल्यू था, वैसे यहाँ X का वैल्यू है. अब कहाँ से शुरू कहाँ खत्म, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वो सब करेगा खुद ही फॉर इन लूप. सो इट विल वर्क फाइन. So if I go here, it is doing the same thing, right? Okay. Now I want to do same thing using
फॉर ऑफ लूप, बताएं क्या करूं मैं? फॉर, फिर से कहूंगा लेट एक्स ऑफ ई। व्हाट इज ई? इज एन एरे जिसमें सारी लिस्ट एलिमेंट्स है। मेहरान शबीर, व्हाट इज ई दिस टाइम? व्हाट इज ई हैविंग? सर एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट, ऑल द एलिमेंट्स। ऑल द एलिमेंट्स, वो सारे सिलेक्ट। यस सर, जब आपका यस सर, सारे select। जब आप कहते हो लेट एक्स ऑफ ई, ऑफ ई कर रहे हो आप, उससे क्या होगा? यस सर। मेहरान वाली, सर उसमें जो एलिमेंट्स है ना, उससे हम इंडेक्सिंग करेंगे, डायरेक्ट नहीं नंबर से, जो उसके एलिमेंट्स हैं उसके अंदर। मुझे बताओ लेट एक्स ऑफ ई से क्या होगा? ई में क्या होगा? पहले आइटरेशन में क्या होगा? ई सर ई होगा, क्या होगा ई में? उमर आप बताओ क्या होगा ई में? यार आप लोग तो पढ़ ही नहीं रहे हो कुछ, आप तो इस दर बदरी बच खबर के। ये तो कल ही पढ़ा है मैंने, फॉर इन, फॉर ऑफ, ये लूप्स। क्या जी एहसान में माइक ये वेब कैम बंद? हाँ कौन बताएगा? फॉर लेट एक्स ऑफ, एक्स में क्या होगा पहली आइटरेशन में? होगा ना सर, जो हम्म, एरे का पहला एलिमेंट है जावास्क्रिप्ट। एग्जैक्टली। क्योंकि जब आप एक्स ऑफ करते हो, वो सीधे एरे का पहला एलिमेंट लाएगा, वो डालेगा एक्स में, यानी कि इंडेक्सिंग करने की जरूरत अब नहीं है ना? देखा, वन मिनट कहाँ गया? दर्द देरी माँ करिए तो क्यों को थोड़ा करिए प्रिपेयर, मैं तो वीडियो भी बनाता हूँ। यू हैव गॉट वीडियोस आल्सो ऑन योर डिस्पोजल। अगर ये एरे है, जीरो, इंडेक्स जीरो है, बे यार इसको पता नहीं क्या परेशानी है। अब पेंट खोलेंगे सीधा, अब खुल गया फिर से। ये एरे है, इसका नाम ई है या ए आर है, जो भी नाम है। ये इंडेक्स है 0 1 2 3, और इसके अंदर है ABCD। अगर आप फॉर लूप लगाते हो सीधे, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन वट एवर 3 और 4, आई प्लस प्लस, या आप लगाते हो फॉर एक्स इन दिस एरे नेम इज ई, सो एक्स इन ई, दोनों सूरतों में इंडेक्स आ जाता है आपके एक्स में भी, और यहां आई में इंडेक्स है। यानी कि आपके पास ये जीरो है, जबकि आपको जीरो नहीं ए चाहिए, बंदा ए है, एलिमेंट ए है, ठीक है? जीरो एड्रेस है, वन इसका एड्रेस है, मगर हमें कंटेंट चाहिए कि वहां पे है क्या। तो आपका कंटेंट नहीं मिल रहा इस आई से या इस एक्स से, तो इसलिए आपको बोलना पड़ रहा है ई ऑफ एक्स, यहां बोलना पड़ रहा है ई ऑफ आई। यानी कि अगर आई जीरो है या एक्स जीरो है, तो आप कह रहे हो ई ऑफ जीरो, वो अब आ गया ए। आप कह रहे हो ई ऑफ वन, अब आ गया वो बी। आप कह रहे हो ई ऑफ टू, अब आ गया वो सी। या आप यहां से कह रहे हो ई ऑफ आई, चाहे अब आप आई कहो या चाहे अब आप एक्स कहो, बिकॉज आई एंड एक्स बोथ आर इंडेक्सेस। ठीक है ना? ठीक हो गया। लेकिन जब आप कह रहे हो फॉर जो एक्स है ऑफ ई, अब आपने एक्स ऑफ ई कर दिया, उसका मतलब है जो एक्स है ना, उसमें इंडेक्स नहीं बल्कि एलिमेंट इटसेल्फ विल गो इनटू द एक्स। सो पहली बार में एक्स में ए होगा, दूसरी बार में एक्स में दूसरा एलिमेंट होगा। ठीक है ना? तो अब आपको ये इस सूरत में लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट काम करोगे, बिकॉज एक्स के अंदर क्या है? डायरेक्ट एलिमेंट है। ठीक है? आपका फॉर ये जो लूप था या फॉर इन लूप था, इन दोनों में आपको इंडेक्स आ रहा था, तो आप इंडेक्स से अंदर का एलिमेंट निकाल रहे थे। कैसे? बाय सेइंग जो एरे का नाम है एंड जो इंडेक्स का नाम है, चाहे आप ई ऑफ आई को हो या वो ई ऑफ एक्स को, क्योंकि एक्स में पहले जीरो, आई में पहले जीरो था, फिर आई में वन होगा, टू होगा एंड सो ऑन। ठीक हो गया? लेकिन इस सूरत में क्या होगा? डायरेक्ट आपके एक्स में एलिमेंट आएगा, सो यू डोंट हैव टू से ई ऑफ एक्स, बल्कि जो ई ऑफ यहाँ पे एक्स निकाल रहा था, वो निकाल रहा था ये ए,
अब डायरेक्ट यही ए एक्स के अंदर है, सो यू हैव टू डायरेक्टली से एक्स। ठीक हो गया, क्लियर? अगर ये क्लियर है तो मुझे बताओ अब कैसे मैं करूंगा इसमें एक्सेस, ये बताएगा सिर्फ कलीम आईटी बताएगा खाली। तो डायरेक्ट करेंगे ना इसको, वो इंडेक्स की जरूरत नहीं है तो डायरेक्ट ही लिखेंगे एक्स। बताओ क्या करूंगा, कैसे इसका बैकग्राउंड चेंज करूंगा मैं? जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज किया, ऐसे ही बैकग्राउंड चेंज करना है यहाँ पे। सर इसको सीधा लिखेंगे फिर एक्स डॉट स्टाइल बैकग्राउंड इज इक्वल टू ग्रे। क्या करूंगा मैं? एक्स डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड। यस एब्सोल्युटली, और क्या करना है? स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू ग्रे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल यही बात है, ठीक है ना? ना इफ आई कंट्रोल एस सेव इट एंड आई गो हियर and I refresh it firstly and I say submit, everybody is getting things, okay? बस में आई। सो अगर मैं हर बार इसको यहाँ पे कंसोल भी करूं, मैं कंसोल में भी ये एक्स प्रिंट करना चाहता हूं, आई विल से कंसोल डॉट लॉग एक्स। मैं करूँगा एक्स को कंसोल डॉट लॉग करूँ कि एक्स में है क्या, क्या था एक्स में, ठीक है? आई गो हियर, आई रिफ्रेश दिस एंड आई गो सबमिट। नाउ यू सी, जो एक्स में था पहले एल आई था, फिर दूसरा एल आई था, तीसरा एल आई था, ये सारा बता रहा है। तो जो जो लूप में आ रहा है, क्योंकि एक्स में एलिमेंट खुद था। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको करते, किसको, ये वाला बंद करेंगे या इसी को रखेंगे, फॉर एक्स इन कहेंगे, एक्स इन ई, क्योंकि फिर हमें यहाँ पे एक्स में इंडेक्स है तो इसलिए ई ऑफ एक्स करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि एक्स में इंडेक्स देखेंगे, एक्स में इंडेक्स था कि नहीं, क्या था एक्स में, क्या था वो भी प्रिंट हो जाएगा, कंट्रोल एस। तो यहाँ पे जाएंगे, सबमिट करेंगे। सो एक्स में क्या था, ये एक्स प्रिंट हो रहा है ना, 0 1 2 3 इंडेक्स था। इसीलिए हमें, चूंकि इंडेक्सेस थे एक्सेस के अंदर, तो इसलिए हमें इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग से ये करना पड़ा, क्योंकि एक्स में 0 था, 1 था, 2 था। तो आपने ई ऑफ 0 कहा, ई ऑफ 0 ने निकाला कि उसमें इस ई में क्या है, जो ये ई है, ठीक है ना? कंसोल डॉट लॉग ई के ना, उसमें वो एरे पूरी थी। तो इस तरीके से आपका क्या होता है कि आपने एक एलिमेंट को सिलेक्ट किया यूजिंग इट क्लास नेम। अगर आप क्लास नेम से नहीं करना चाहते, ओके, मैं इसको बंद करता हूँ। मेरे पास एक और तरीका है, व्हाट इज कॉल्ड एज अ टैग नेम, ठीक है? आई एम सेइंग ई इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, एज यू कुड सी है। सीधे टैग नेम से करो, और टैग नेम में आपने क्या कहा, मैंने कहा इसको बाय, आप एक काम करो, डिव कर दो, सिलेक्ट द डिव। ठीक हो गया? अब मुझे बताओ डिव कितने हैं। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा, कंसोल डॉट लॉग करूंगा मैं ई को, सो डिव कितने हैं मेरे पास डॉम में? एक डिव ये है, दूसरा डिव ये है, तीसरा डिव ये है, 3 डिव्स मेरे पास है ना? तो जब मैं इसको कह रहा हूं भाई साहब मुझे आप गेट एलिमेंट बाय टैग नेम दे, और जो जिसका टैग नेम डिव है, आप बताओ कितने हो जाएंगे इसमें सिलेक्ट? तीनों। तीनों हो जाएंगे। तो अगेन ई विल बी व्हाट, एन एरे। जब तीनों होंगे तो तीनों एरे में घुसेंगे ना। तो इफ आई गिव इट अ गो, इसमें देखो पहला ड्यू बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, सारा तीन तीन लेंथ 3 दिखा रहा है कि आपके पास भाई साहब 3 डिव्स हैं, तीनों सिलेक्ट हो गए। अगर मैं पहले डिव को चेंज करना चाहता हूं, बैकग्राउंड कलर पहले डिव को, वो ये है लर्निंग डोम वाला, है ना? पहले डिव में कौन था? पहले डिव में ये है जिसमें H1 है, लर्निंग डोम। मैं इसको बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूं, सो व्हाट कैन आई डू, हाउ कैन आई चेंज इट? यार इसको डिलीट कर दो, ये बीच बीच में मुझे फजूल में। हम्म अगेन अरे है ना यार क्या हो तुम लोग, जल्दी बताओ।
ये तो वही सेम किस्सा है ना जो यहाँ पे किया हमने। इधर इधर भी एरे थी आपकी लिस्ट वाली, यहाँ पर भी एरे हो गई। सो ई ऑफ 0 एग्जैक्टली डॉट स्टाइल डॉट background color equals to, say for example, hot pink. अब आप जब यहाँ जाओगे, मैं ये है ना, मैं मुझे आदत होगी ना मैक पे ऐसे करने की, दूसरे पे जाने की, मुझे दिख रहा कीबोर्ड स्पाइन की, सो एक कंफ्यूजन होता है मुझे। एनीवेज, नाउ व्हेन आई क्लिक, so you see the first div gets the background color of hot pink. I can increase the height and whatever. अगर आप इसको हाइट इंक्रीज करना चाहते हो, इसका हाइट थोड़ा इंक्रीज करेंगे तो क्या करेंगे बताओ? We want to increase the height. I say Control Alt and down arrow to copy paste it. अब EF0 ही मेरे पास है, EF0 पहला वाला डिव, अगर मैं EF1 करूंगा वो दूसरा डिव आ जाएगा। स्टाइल डॉट हाइट, HEIGHT, इसको इंक्रीज करेंगे हम हाइट जितनी आपकी मर्जी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं करूंगा इसका डबल, देन REM, डबल रैम करेंगे। कंट्रोल एस, सेव इट। ओके, सो स्क्विगली लाइन माश लिखना यासमस यस कोट्स में, कंट्रोल एस। नाउ व्हेन आई गिव इट अ गो, it has not applied the height, there is some issue with this। हमने क्या क्या सेव किया है कि नहीं? कंट्रोल एस, सेव इट, डबल REM। ठीक है, नहीं कर रहा है। हमने गलती कहाँ पर की? मैं कह रहा हूँ E0 डॉट स्टाइल डॉट हाइट, 2 रैम कर रहा हूँ मैं। इसमें क्या मसला है? अगर मैं सीधे करूंगा 90 पिक्सल दीजिए मेरे पास, 90 पिक्सल्स 16 था, 16 टू REM तो 32 आना चाहिए था। मैं कंट्रोल एस, हाँ REM असल में छोटा हो रहा था 2 REM, इसको 5 रैम करेंगे तो चलेगा। 5 रैम, वो फर्क नहीं पड़ रही थी हमें, इसीलिए ये नहीं कर रहा था काम। रैम्स एंड एम्स यू मस्ट बी नोइंग दैट, है ना? इट्स वर्किंग फाइन, डू यू अंडरस्टैंड? सो अगर आपको सबके ऊपर चेंज करना तो लूप चलेगी, है ना? ठीक है, अब आप मुझे बताएं, एक और चीज आता है, दैट्स कॉल्ड क्वेरी सिलेक्टर। दैट्स कॉल्ड व्हाट? एक और चीज में आती है। वी हैव हाउ मेनी टाइम्स? 2 मिनट्स लेफ्ट, नो प्रॉब्लम, जस्ट कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। एक और चीज आती है, व्हाट्स कॉल्ड एज ए क्वेरी सिलेक्टर। आई से E इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर आता था, हाँ QUE, क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर में आप बता रहे हो इसको कि भाई साहब आप किसको सिलेक्ट करना चाहिए? मैं कहता हूँ लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा। अब क्वेरी सिलेक्टर में एक चीज ये है कि यहाँ पे जब आपने देखा अपने आईडी कहा तो यहाँ पे हैश लगाने की जरूरत नहीं थी, पता ये हेड आईडी है। यहाँ पे फिर आपने कहा क्लास नेम, यहाँ पे डॉट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता ही है कि लिस्ट क्या है, यहाँ क्लास नेम से हम सिलेक्ट कर रहे हैं। और क्वेरी सिलेक्टर जो है ना, वो कुछ भी कर सकता है सिलेक्ट, आपका चाहे क्लास हो, आपका आईडी हो, आपका टैग नेम हो, जो मर्जी है वो, लेकिन इसको यहाँ बताना पड़ेगा कि ये भाई साहब क्लास है, तो डॉट लिस्ट। अब मुझे बताया आपकी लिस्ट किस किस के पास है? लिस्ट का क्लास नेम किस किस के पास है? List items. तो विल E बी द एरे दिस टाइम और नॉट? क्योंकि मैं कह रहा हूं क्वेरी सिलेक्टर आप करो जिसका आईडी, जिसका ये लिस्ट है, जिसका ये क्या है, तो लिस्ट तो चारों एलआई आइटम्स के पास लिस्ट है ना, नाम है ना? बट व्हेन आई गिव इट अ गो, कंट्रोल एस, आई सेव इट एंड आई गिव इट अ गो एंड आई से सबमिट, वहां से एक ही एलिमेंट आएगा, पहला वाला बंदा। देखो ये दिखा भी रहा है जावा, ये दिखा रहा है यहाँ पे, मैं जब हावर कर रहा हूँ खाली पहला वाला बंदा आएगा। क्यों? जो क्वेरी सिलेक्टर है उसमें स्पेशलिटी है, वो सबको उसने लिया। आपने कहा कि जिसका नाम ये है, अब 50 बंदों के पास मानो लिस्ट का क्लास है, लेकिन ये सिलेक्ट करेगा फर्स्ट आइटम ओनली। ये इसमें ख्याल रखना है, इट विल सिलेक्ट व्हाट? फर्स्ट आइटम ओनली। समझ में आई बात? अब आप क्वेरी सिलेक्टर से मगर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मेरे पास इनपुट, मैं कहूंगा क्वेरी सिलेक्टर तू एक काम कर, मेरे को यहां पे कहूंगा मैं, तू इनपुट, सीधे टैग नेम इनपुट,
इनपुट बॉक्सेस मेरे को सिलेक्ट कर। अब जब मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा, व्हाट विल इट सिलेक्ट? इट विल सिलेक्ट ओनली द यूजर नेम, द फर्स्ट, क्योंकि हालांकि ये भी इनपुट है, हमें और भी इनपुट हो सकते हैं, 50 इनपुट्स हैं, लेकिन पहला वाला इनपुट टैग नेम सिलेक्ट होगा। आप आईडी भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप क्लास नेम भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप टैग भी सिलेक्ट कर सकते हो यूजिंग द सिंगल थिंग कॉल्ड क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, सो क्वेरी, अगर आपको क्लास गेट एलिमेंट बाय आईडी है, वो सिर्फ आईडी करेगा, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम वो क्लास बंदे करेगा जिनका क्लास नेम है, लेकिन क्वेरी सिलेक्टर आपका टैग हो, आईडी हो, क्या हो, वो सबको करेगा, लेकिन जितने उसमें है वो एरे नहीं खड़ा करेगा, बल्कि पहला पहला एलिमेंट खड़ा